آپ کو آزمایا نہیں جائے گا، آپ کو امتحانوں سے نہیں گزارا جائے گا، جیسا کہ آپ سے پہلوؤں کو اللہ نے آزمائشوں سے گزارا، امتحانات سے گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا، اور اللہ آپ سے بھی جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اعمال بھی تو کرنے ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ اور صحابہ کرام نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر ایمان لانے کے بعد جن مشکلات کا سامنا کیا اور جن پریشانیوں کا سامنا کیا، جن مصائب و آلام کو انہوں نے برداشت کیا، اس کی مثال صرف صحابہ ہی دے سکتے ہیں۔ قربانیوں کی عظیم داستان، امتحانوں میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا، یہ صرف صحابہ کا طرہ امتیاز ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و تشدد کا سامنا کرتے ہوئے جب دیکھا تو آپ نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر آپ صبر اختیار کرو اس ظلم کے مقابلے میں، اس تشدد کے مقابلے میں، اس اذیت کے مقابلے میں، اس پریشانی، غم اور آلام کے مقابلے میں میرے اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کی حقانیت کو دل میں نہیں اتارتے۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ہمیں جن شرائط و ضوابط کا خیال کرنا چاہیے ہم ان کا خیال نہیں کرتے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس وقت جب قسم اٹھانی ہو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس وقت جب جھوٹ بولنا ہو، جھوٹ بولیں گے اور پھر ساتھ میں کلمہ بھی پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ یہ کام کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کلمے کو صرف اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کلمے کی قیمت کیا ہے، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد قربانی کیسے دینی ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام سے سبق ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس کلمہ پڑھنے کی جو قربانیاں دی ہیں اور اس کلمے کی قیمت جو چکائی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف تاریخ والوں نے اوراق کالے نہیں کیے، بلکہ وہ واقعات اور وہ داستانیں ایسی عظیم داستانیں ہیں کہ آج کے دور میں ان کو پڑھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ وہ شاید انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھی، جنہوں نے کلمے کی قیمت چکانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، اپنا کاروبار قربان کر دیا۔ دور حاضر میں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو اسے تشدد کا راستہ بتایا جاتا ہے، اسے ایام جاہلیت کو یاد تازہ کرنے کی مثالیں بتایا جاتا ہے، اور اسے صرف علماء کی طرف منسوب کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں،
जिस तरह सहाबा किराम ने अमन का, मोहब्बत का, उखुव्वत का, प्यार का और अपनाइयत का और अमन और सुकून का जो पैगाम दिया है, जो निज़ाम दिया है और जो अपनाइयत के आलीशान असबाब पढ़ाए हैं, मेरे सहाबा किराम ने हमारे लिए उसवा हसना की एक ऐसी अजीम दास्तानें छोड़ी हैं कि अगर हम सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ें तो जिस तरह सहाबा कामयाब थे, हम आज भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद अपनी इताअत की मिसाल और अपनी इताअत के लिए जो रोल मॉडल तश्कील दिया, जो उसवा हसना बनाया और जो एग्जाम्पल और जो सैंपल उम्मत के सामने रखा, वो सहाबा किराम की सूरत में है। सहाबा किराम की तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में फरमाई है कि जिस तरह मैं तुम्हें तालीम दे रहा हूं, अगर आने वाली उम्मतें मेरी इताअत करना चाहती हैं, मेरी फर्मा बरदारी करना चाहती हैं और मुझे अपना रसूल मानना चाहती हैं और मेरे उम्मती होने का दम भरना चाहती हैं और दीन इस्लाम को कबूल करना चाहती हैं, तो उनके लिए मिसाल, उनके लिए रोल मॉडल, उनके लिए आइडियल शख्सियत नबी अकरम ने सहाबा किराम को करार दिया है। और सहाबा किराम को अल्लाह के पाक पैगंबर ने यूं ही मिसालें नहीं बना दिया, यूं ही एग्जाम्पल नहीं बना दिया और यूं ही अल्लाह के पाक पैगंबर ने सहाबा किराम को हमारे लिए मेयार हक नहीं बना दिया। पहले सहाबा किराम को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने के बाद कलमे की हकीकत से आशना कराया, आशना कराने के बाद सहाबा किराम को उन सख्तियों से गुजारा, उन तकलीफात से गुजारा, उन आजमाइशों से गुजारा कि कल को कोई कहने वाला ये न कहे कि रसूल अकरम ने हमें तो कलमा दे दिया, लेकिन आज के दौर में हम इस कलमे पर अमल करते हैं, हमें परेशानियों का सामना होता है, हमें मसाइब का सामना करना पड़ता है, इंसानी जिंदगी में इन अहकामात को लागू नहीं किया जा सकता, इंसानी सोसाइटी में इन अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया जा सकता, इंसानी मुआशरे में इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे पाक पैगंबर ने हमारे लिए हुज्जत ताम करते हुए ये कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद उनको ऐसा निजाम अता किया। कुरान मजीद सहाबा किराम की मिसाल देते हुए इरशाद फरमाता है, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान मुक़द्दस सहाबा किराम की कामयाबी के लिए इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, वो वक्त याद करो जब तुम आपस में लड़ते थे, जब तुम आपस में झगड़ते थे, जब तुम आपस में इख्तिलाफात रखते थे, जब तुम्हारे दिल नफरतों में भरे हुए थे, जब तुम्हारे दिलों में शिर्क था, जब तुम्हारे दिलों में बीमारियां उरूज पर थी। और फिर एक वक्त आया, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, कि तुम दुश्मनी की उरूज पे पहुंचे हुए थे और पाक पैगंबर ने आकर तुम्हें कलमे की दौलत से नवाजा, पाक पैगंबर ने आकर तुम्हें इस्लाम दिया, पाक पैगंबर ने आकर तुम्हें मोहब्बत सिखाई, पाक पैगंबर ने आकर तुम्हें उसवा हसना दिया, पाक पैगंबर ने आकर तुम्हें कलमे के तकाजे बताए, पाक पैगंबर ने आकर तुम्हें सदाकत समझाई, तुम्हें अदालत
रसालत समझाई, तुम्हें दियानत समझाई, तुम्हें सखावत समझाई, तुम्हें शराफत समझाई, तुम्हारी जिंदगी को बदला, तुम्हारे दिलों को बदला, तुम्हारे जहन को बदला, तुम्हारी सोसाइटी को बदला, तुम्हारे पैगाम को बदला, तुम्हारी सोच को बदला, तुम्हारी फिक्र को बदला, और फिर फअस्बहतुम बिनिअमतिही इखवाना। और फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह पाक ने नबी अकरम की मेहनत की बदौलत तुम्हें भाईचारगी के धागे में इस तरह परो दिया कि अब तुम भाई बन चुके हो। पहले नबी के आने से पहले शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम आग के गड़े के किनारे पर खड़े थे और पाक पैगंबर का कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का वारिस बना के बिठा दिया है। ये कलमे के तकाजे क्या हैं? कलमे की अहमियत क्या है? कलमे की हकीकत क्या है? कलमे का पैगाम क्या है? कलमा हमसे डिमांड क्या करता है? कलमा हमसे तकाजा क्या करता है? कलमा हमसे कुर्बानी क्या मांगता है? हम कलमा तो पढ़ते हैं, कलमे की हकीकत से वाकिफ नहीं है। हम कलमा तो पढ़ते हैं, हमसे नमाज पढ़ी नहीं जाती है। हम कलमा तो पढ़ते हैं, झूठ हम बोलते हैं। हम कलमा भी पढ़ते हैं, बददियानती करते हैं। हम कलमा भी पढ़ते हैं, खयानत भी करते हैं। हम कलमा भी पढ़ते हैं, नाप तोल में कमी भी करते हैं। हम कलमा भी पढ़ते हैं, मुआशरे में जिना भी आम है। हम कलमा भी पढ़ते हैं, फहाशी उरूज पे पहुंची हुई है। हम कलमा भी पढ़ते हैं, हमारी आपस में मोहब्बत भी पैदा नहीं होती है। हम नफरतों की आग में अपने आप को जलाए बैठे हैं। लेकिन सहाबा किराम ने जब कलमा पढ़ा, कलमे की हलावत को महसूस किया, कलमे की मिठास को महसूस किया, कलमे की तासीर को कबूल किया, कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने इसके निजाम को पहचाना, कलमे की हकीकत को पहचाना, कलमे की सदाकत को जांचा। कलमे के बाद, कलमा पढ़ने के बाद जब इसकी हकानियत को पहचान लिया है तो सहाबा किराम ने हर तरह की कुर्बानी दी है। जान कुर्बान करनी पड़ी, कर छोड़ी है। बच्चे कुर्बान करने पड़े, कर छोड़े हैं। कारोबार छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया है। वतन कुर्बान करना पड़ा, कर दिया है। वतन से बेवतन हो गए, होना पड़ा, हो गए। लेकिन कलमे की हकीकत को नहीं छोड़ा, कलमे की सदाकत को नहीं छोड़ा। आज हम कलमा पढ़ते हैं, कलमे की अहमियत को जानते नहीं है। मेरे बुजुर्गों, हमने जो कलमा पढ़ा है यह आलीशान कलमा है, यह अजीमुशान कलमा है, यह बेहतरीन कलमा है, यह अजीमुशान कलमा है। इसकी अहमियत तपते हुए अंगारों पर लेटने वाले बिलाल से पूछो। इस कलमे की अहमियत हजरत सुहैब से पूछो। इस कलमे की अहमियत दो टुकड़े होने वाली सैयदा सुमैया से पूछो। इस कलमे की अहमियत जनाब अबू फकीहा से पूछो, जिन्होंने अपनी पसलियां तुड़वा दी हैं। इस कलमे की हक्कानियत जनाब अबू बकर से पूछो, जिनको मारा गया, बेहोश हो गए, आंख खोलिए। दुनिया ने सोचा दुनिया की कोई चीज मांगेगा, खाने को कुछ मांगेगा, पीने को कुछ मांगेगा। जब आंख खुली तो अबू बकर ने कहा, जिसका कलमा पड़ा है पहले उसी का दीदार करा दो, मैं सारी दुनिया की तकलीफें भूल जाऊंगा।